Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Atif, lecturer chemistry at City College of Science and Commerce, मुल्तान। जी तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप सीखेंगे अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिड, आई वुड लाइक टू लाइटन अपॉन द एप्लीकेशंस ऑफ एसिड। कुछ अर्से पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि एसिड्स जो हैं दैट आर टू मच हार्मफुल फॉर अस एज द टॉयलेट क्लीनर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे एसिड्स हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, एडिबल के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ऑरेंज के थ्रू हम अपटेक करते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड लेमन के थ्रू हम गेट करते हैं, एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनीगर हम डिफरेंट फूड के तौर पे उसे डिफरेंट फूड आइटम्स में उसे यूज़ कर रहे होते हैं, और जैसा कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम डेली यूज़ कर रहे होते हैं। दिस शोज दैट ऑल द एसिड्स आर नॉट टू मच हार्मफुल। कुछ एसिड्स हैं जो कि कुछ हार्मफुल हैं, लेकिन सारे के सारे एसिड हार्मफुल नहीं होते। तो चलिए अब चलते हैं टुवर्ड्स द अर्लियर हिस्ट्री ऑफ एसिड्स। अर्लियर हिस्ट्री इन अबाउट 1600 a scientist with the name of Boyle defined first time about the acids. According to Boyle's, acids are the substances whose aqueous solution turns blue litmus to the red. देखिए हमारे पास जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स ऐसे सॉल्यूशंस हैं, ऐसी सब्सटेंसेस हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। आप मेमोराइज कर सकते हैं। बॉयल्स इन 16th century first time define about the acids. According to Boyles, the substances whose aqueous solution turns blue litmus into red are called acids. And later on in 1774, a scientist with the name of Rayleigh first time defined the bases. According to Rayleigh, bases are the substances whose aqueous solution turns red litmus to the blue. देखें यहाँ पे आपने याद रखना है, एसिड ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती हैं। बट ऑन द अदर हैंड बेसिस ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं। दिस इज अबाउट द अर्लियर हिस्ट्री ऑफ एसिड एंड बेसिस। Later on, various concepts of acids and bases have been given. We will discuss in this lecture. जी तो students, there are various concepts of acids and bases, among which there is Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept, Lewis concept, solvent system theory, Lux flood concept, Usonvich concept, and Sharp concept. Among these all concepts, we will discuss only three. First one, the Arrhenius concept. जी तो students चलते हैं towards Arrhenius concept. According to Arrhenius, acids are those compounds which have hydrogen and their hydrogen is replaceable. They can donate its hydrogen in the aqueous solution. मतलब कि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड ऐसे कंपाउंड्स को कहेंगे जिनके पास हाइड्रोजन हो और वो अपना हाइड्रोजन एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट भी कर सकते हो। वेरियस एग्जांपल्स आर देयर। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, HCl is an acid whenever HCl is dissolved into the water. It yields H positive and Cl negative. As it is going to yield H positive, so it is an acid. Okay. Another example of it like this, H2SO4. Sulfuric acid. Sulfuric acid is another example of Arrhenius. Okay. Sulfuric acid, whenever it is dissolved into the water, it produces 2 H positive ions and sulfate ion. As both of these compounds have hydrogen and in the aqueous solution, they can donate H positive, so these are labeled as acids. Various other compounds also have hydrogen, like CH3, single bond CH3. Alkane, it also have hydrogen, but it cannot donate H positive. That's why it cannot be labeled as acid.
और अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिनमें हाइड्रोजन होगा और वो अपना हाइड्रोजन लिबरेट कर सकते हैं, अपना हाइड्रोजन जो है यील्ड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन. Such substances are named as acid, and at the same time Arrhenius gave a definition for bases. According to Arrhenius, bases are the compounds which contain hydrogen and yields hydroxyl ion whenever they are dissolved into the water. Various examples are there like KOH, potassium hydroxide, one of the example of base. Another example, calcium hydroxide. Second example, large number of examples are there, few mentioned over there. Okay, whenever these compound, potassium hydroxide, calcium hydroxide, sodium hydroxide, are dissolved into the water, they yields hydroxide ion, so they are labeled as bases. जी तो स्टूडेंट आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया. इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिसमें से कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. जिसमें से एक ये कि इट एक्सप्लेन अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. इट टेल्स अस हाउ एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर. इसी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ने हमें बताया कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में H पॉजिटिव OH नेगेटिव आपस में मिलते हैं, वाटर बनाता है और इन दिस वे बोथ एसिड एंड बेस आर न्यूट्रलाइज. यही आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हमें बताता है अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. यही आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हमें बताता है अबाउट कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एसिड्स. लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. उन लिमिटेशंस में से एक ये कि जब भी इसने किसी एक कंपाउंड के बारे में बताना होगा कि इधर दैट इज एसिड और नॉट, इट नीड वाटर एज ए सॉल्वेंट. Number 2, it cannot explain about the ammonia, either it is acid or base. It cannot explain sulfur dioxide is a acid. देखिए बहुत सारे अदर प्रोसेसेस के जरिए ये प्रूव है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिड है, लेकिन ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट नहीं बता पाता. और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में भी हमेशा एक सॉल्वेंट की जरूरत होती है. These are few limitations of Arrhenius concept, and this is all about the Arrhenius concept for the acids and bases. जी तो स्टूडेंट चलते हैं अब सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ विद द नेम ऑफ Bronsted-Lowry concept for the acids and bases. According to Bronsted-Lowry, the compounds which have tendency to donate H positive ion, the compounds which have tendency to donate proton are named as acids. In short term, we may label it as proton donor species are acids according to Lewis. And at the same time, he introduced about the bases. According to Bronsted-Lowry, bases are the substances, bases are the compounds which have tendency to accept H positive, or it may label as proton acceptor species are called bases. Number of examples for Bronsted-Lowry acids and bases are there, among which there is hydroxyl ion, HCl, H2SO4. Both of these are labeled as acid. Why? Because HCl may liberate H positive ion. H2SO4 may also liberate H पॉजिटिव आयन. हमने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू Bronsted-Lowry, H पॉजिटिव डोनर प्रोटॉन डोनर स्पीशीज आर एसिड्स. ठीक है, तो ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कैटेगराइज्ड एज Bronsted-Lowry एसिड. अब देखते हैं कुछ स्पीशीज जिन्हें हम Bronsted-Lowry बेसिस का नाम, जैसे कि अमोनिया NH3. प्रीवियस कॉन्सेप्ट आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था, वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि अमोनिया बेसिक या बेस है या नहीं, लेकिन यहां पे लिविस कॉन्सेप्ट इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि अमोनिया इज अ बेस. कैसे ही एक्सप्लेन कर रहा है? हमने देखा कि बेसिस आर द स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव. यहां पे अगर इसका किसी एसिड के साथ रिएक्शन होगा जो कि H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, अमोनिया विल एक्सेप्ट दैट H पॉजिटिव
and will convert into NH4 positive ammonium ion. ठीक है, as ammonia is going to accept H positive, it is proton acceptor, it is a base. इसे हम बेस के तौर पे कैटेगराइज करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स, जो ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स और बेसिस हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये न्यूट्रल फॉर्म में हो, ये मोलिकुलर फॉर्म में ही हो. इट मे बी इन द मोलिकुलर फॉर्म, इन द कैटायनिक फॉर्म, इन द एनायनिक फॉर्म. जैसा कि मोलिकुलर फॉर्म में हमने देखा HCl that can donate H positive, it is molecular acid. At the same time, there is another example of acid, cationic acid. H3O positive hydronium ion, it may liberate H positive in the form of H2O plus H positive. It is also categorized as Bronsted-Lowry acid. बेस की बात करें, बेस के बारे में हमने कहा कि प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है. उसकी एक एग्जांपल हम देख चुके हैं, अमोनिया. अमोनिया न्यूट्रल था, मोलिकुलर फॉर्म में बेस हो सकती है. एट द सेम टाइम आयोनिक फॉर्म जैसे कि कैटायनिक फॉर्म एंड एनायनिक फॉर्म में भी बेस हो सकती है. उसकी एग्जांपल में हम देखते हैं Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन. Whenever it is being treated with proton, it can accept H positive and will convert into HCl. So chloride ion is an example of anionic base. ये तो स्टूडेंट ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट हमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में बताता है. लेट अस सपोज HA is an acid, B is a base, जैसे कि आपको स्लाइड में नजर आ रहा होगा. और जब ये आयोनाइज होता है, यहाँ पे देखिए HA हमने इसे सपोज किया कि ये एक एसिड है, ठीक है, और B हमने इसे लेबल कर दिया कि ये कोई बेस है. इस बेस है मतलब कि इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना है. एसिड है मतलब कि इसने H पॉजिटिव लिबरेट करना है. इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा. आफ्टर द रिएक्शन इट विल कन्वर्ट इनटू A नेगेटिव प्लस BH पॉजिटिव. याद रखेंगे, कोई भी एसिड जब H पॉजिटिव लॉस कर देगा, इट विल कन्वर्ट इनटू कॉन्जुगेट बेस. कॉन्जुगेट बेस. एसिड आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव will convert into conjugate base, and a base after accepting H positive. देखिए B एक बेस थी, बेस ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया. A base after accepting H positive will convert into conjugate acid. Conjugate acid. Okay. In this way, Bronsted-Lowry concept explain about the conjugate acids and base. एक एग्जाम्पल के जरिए इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. जैसा कि HCl क्या है, ये एक एसिड है. वाटर के साथ इसका अगर रिएक्शन करवाएं, HCl एसिड है, वाटर में H पॉजिटिव डोनेट करेगा, विल कन्वर्ट इनटू H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. देखिए इसने H पॉजिटिव डोनेट किया है तो ये एक एसिड है. वाटर इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया है तो ये एक बेस है. इसे हम बेस के तौर पे लेबल करेंगे. एंड एसिड आफ्टर लूजिंग, ये एसिड था, आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव विल कन्वर्ट इनटू कॉन्जुगेट बेस. क्लोराइड आयन जो है वो क्या है, कॉन्जुगेट बेस. एंड एट द सेम टाइम अ बेस आफ्टर एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव विल कन्वर्ट इनटू कॉन्जुगेट एसिड. दिस इज अबाउट द conjugate acid base pair on the behalf of Bronsted-Lowry concept. Bronsted-Lowry concept also explain about the amphiprotic species. यहाँ पे हमने ये अंडरस्टैंड करना है what are amphiprotic species. ऐसी species which act like both as an acid and a base are named as amphiprotic species. Various examples are there, जैसा कि water H2O एम्फीप्रोटिक स्पीशी के तौर पे वर्क करता है. जैसा कि हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, इट में आल्सो एक्ट एज एम्फीप्रोटिक स्पीशी. स्लाइड में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड
जब OH के साथ रिएक्ट करता है तो ये अपना H पॉजिटिव डोनेट कर देता है, तो ये एसिड के तौर पे वर्क कर रहा होगा। लेकिन यही HS हाइड्रोजन सल्फाइड जब हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेता है। H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है मतलब इट इज बीइंग एक्ट एज ए बेस। Bronsted-Lowry concept also explain about the polyprotic acids. Polyprotic acid mean acid may be monoprotic, diprotic, triprotic on the behalf of number of H positive, number of proton donated. देखिए हमारे पास HCl है, HCl can donate only one H positive. When it is dissolved into the water, it yields only one H positive. It yields, देखें HCl वाटर में डिसॉल्व करने पे एक प्रोटॉन डोनेट करता है, मोनोप्रोटिक कहलाएगा। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड अगर इसे हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये 2 H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है। इसका मतलब है कि ये डाइप्रोटिक है। H3PO4 अगर इसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं इट विल यील्ड्स 3 H पॉजिटिव आयंस अमंग विद सल्फेट आयन। इसका मतलब है H3PO4 इज ट्राइप्रोटिक। जी, इन दिस वे Bronsted-Lowry concept explain about monoprotic, diprotic and triprotic acid, and it also explain about the basicity, monobasic या monoprotic basis, diprotic basis, triprotic basis के बारे में explanation देता है। Those bases which can accept one proton, slide में साथ given है, those bases which accept one proton are monoprotic bases. Those bases which accept 2 protons are diprotic bases, and those bases which accept 3 proton जैसे कि phosphate ion साथ में given है, phosphate ion is taken as triprotic base because it can accept 3 H positive. This is all about the Bronsted-Lowry concepts of acid and base. Bronsted-Lowry concept also explain about the strength of acids and bases. याद रखेंगे कि जब कोई एसिड डिसोसिएट होता है, देखें हमने यहाँ पे एक एसिड की बात की थी, जनरल हमने कहा था कि लेट अस सपोज HA is an acid. HA is an acid. Whenever it is dissolved in the water, will convert into H positive plus A negative. ये तो स्टूडेंट Bronsted-Lowry concept of acid and base explains about the strength of acids and bases. जैसा कि HA एक एसिड हमने सपोज किया था, इसे रिएक्ट करवाया जाए किसी बेस के साथ, B बेस हमने लेबल कर दिया, इसके साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है एसिड आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव लेबल्ड एज conjugate base and base after accepting, ये HA जो एसिड है H पॉजिटिव डोनेट करेगा, उस H पॉजिटिव को जो बेस है एक्सेप्ट कर लेगी, एक्सेप्ट करने के बाद ये बेस कन्वर्ट हो जाएगी इनटू कॉन्जुगेट एसिड जो कि BH पॉजिटिव के थ्रू इसे लेबल करेंगे, इट इज कॉन्जुगेट एसिड। याद रखेंगे अगर तो एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, उसकी बनने वाली कॉन्जुगेट बेस वीक बेस कहलाएगी। रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट कि अगर जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उससे बनने वाली कॉन्जुगेट बेस वीक बेस कहलाएगी। और अगर ये एसिड, ठीक है, यहां पे स्टेटमेंट के थ्रू मैं मेंशन कर रहा हूं कि वीक एसिड अगर होगा तो उसकी बनने वाली कॉन्जुगेट बेस वो स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर यही एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इसकी बनने वाली बेस जो है, इसकी बनने वाली कॉन्जुगेट बेस वो वीक बेस कहलाएगी। क्लियर हो गया? इन दिस वे Bronsted-Lowry
acid and base concept about explain about the strength of acids and bases। जी तो स्टूडेंट ये था अबाउट ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम चलते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस विद द नेम ऑफ लीविस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू लीविस, एसिड्स आर द स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एसिड ऐसी स्पीशीज हैं जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटीज रखती हैं, जैसा कि H पॉजिटिव। कोई स्पीशी जिसके पास में लॉन पेयर अवेलेबल होंगे, ठीक है, उससे H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है। तो इन दिस वे H पॉजिटिव इज एन एसिड, जैसा कि AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड दैट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम। अगर किसी स्पीशी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, इट मे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे देखें, अबव आफ्टर एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will convert into ammonium ion। यहाँ पे AlCl3 after accepting pair of electron, suppose क्लोराइड आयन से एक्सेप्ट कर लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा AlCl4 और नेगेटिव चार्जेस के ऊपर आ जाएगा। एसिड को रिपीट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट, एसिड आर दो स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एट द सेम टाइम लीविस गिव अ स्टेटमेंट अबाउट द बेसिस। बेसिस आर दो स्पीशीज विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऐसी स्पीशीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं उन्हें हम लिगेंड्स के तौर पे भी जानते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल, जैसा कि NH3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसके पास लॉन पेयर अवेलेबल है, NH3 अपने लॉन पेयर डोनेट कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज अ बेस। OH नेगेटिव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज अ बेस। Br नेगेटिव, इट हैव नेगेटिव चार्ज ऑन इट, इट कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज लेबल्ड एज बेस। जी तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने देखा अबाउट द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेसिस को हम डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।